students, hope you all are fine by the grace of God. Welcome back to your online classes. I am with the chapter 4 from your book Honeydew that's titled as Bapin Chaudhary's Absent Memory. Yeah, there's something new from you. It's a psychological suspense tale. I know you're fond of thrillers and suspense stories. Yeah, in this chapter, there's a character called Bapin Chaudhary, who is also known as Bapin Babu. We'll see how he is deceived and tricked by his friend in such a manner that he is believed to be mentally sick and he has lost his memory, but actually he's perfectly fine, which is discovered at the end of the chapter. So let's begin. The first part deals with the meeting of Parimal Ghosh and Bapin Babu. Bapin Chaudhary regularly visited Kalicharan's bookshop, which was in New Market, to buy books on his way back from work. But one day he felt someone watching him closely. जी हाँ, बैपिन बाबू रेगुलरली कालीचरण की जो शॉप थी उसको विज़िट करने के लिए आते थे, जो कि न्यू मार्केट में थी. किस लिए? क्योंकि उन्हें बुक्स खरीदनी होती थी. He was fond of crime stories, ghost stories and thrillers. So he had to buy at least 5 at a time to last him through week. हफ्ते भर की बुक्स वो खरीद के ले जाते थे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो. Actually he lived alone. He was not a good mixer and had few friends. Didn't like spending time in idle chat. वो अकेले रहते थे और बहुत ज़्यादा उन्हें घुलना मिलना पसंद नहीं था और फालतू बातों में वो अपना टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. बट टुडे समथिंग स्ट्रेंज हैपन. आज लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई शॉप में उनको देख रहा है. When he turned round and found himself looking at a round face, meek looking man who now broke into a smile. जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि एक बहुत ही humble man है जो कि बड़ी स्माइल से उनको देख रहा है. I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked Bapin Babu. Bapin ने पूछा कि क्या हम कभी मिले हैं? मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान पा रहे हो. But the man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. लेकिन जो मैन उनके सामने में खड़ा था उसने कहा कि वो बड़ा आश्चर्यचकित है क्योंकि वो तो पूरे के पूरे हफ्ते एक दूसरे से मिलते थे. He said that I arranged for a car to take you to the Woodrow Falls in 1958. उसने बताया कि इन द ईयर 1958 मैं आपके लिए कार अरेंज की थी जब आप हुड्रो फॉल्स देखने के लिए रांची गए थे. And my name is Parimal Ghosh. He introduced himself as a Parimal Ghosh. Ranchi? Now Bapin Babu realized it was not he but this man who was making a mistake. अब बेपिन बाबू ने जब रांची का नाम सुना तो वो समझ गए कि जरूर इस इंसान को कोई गलतफहमी हो रही है. बेपिन बाबू had never been to Ranchi, had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" बेपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे. हालांकि उन्होंने कई बार प्लानिंग की थी लेकिन नहीं जा पाए थे और इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ. द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, bit his tongue and said, "Do I know you?" Who doesn't know Bapin Chaudhary? Raised his eyebrows, bit his tongue. Raised his eyebrows means facial expressions showing, questioning. जैसे कि हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हो इस तरह का एक्सप्रेशन होना. और bit his tongue means a gesture conveying surprise, यानी कि इस तरह का जेस्चर बनाना कि आप बड़े ही सरप्राइज्ड हो. तो परिमल घोष ने कहा कि अरे भाई बेपिन चौधरी को कौन नहीं जानता. Bapin Babu now turned towards the bookshelves and says, "Still you are making a mistake. One often does. I've never been to Ranchi." Bapin Babu लेकिन बार बार यही कह रहे थे बुक शेल्फ्स को देखते हुए, देखो भाई आप गलती कर रहे हो, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. The man now laughed aloud. और फिर वो जो आदमी है बड़े ही ज़ोरों से हंसने लग गया. वो था saying, "Mr. Chaudhary, you had a fall in Woodrow and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed a car for you to go to Netherhart the next day, but you could not because of the pain in the knee." अब वो आदमी फिर से कहता है कि अरे भाई आप याद करो कि आप हुड्रो फॉल से गिर गए थे और आपकी जो राइट नी है उसमें चोट लगी थी. फिर मैं आपके लिए दौड़ के आयोडीन लेके आया था. फिर मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी क्योंकि आपको नेतरहाट जाना था दूसरे दिन. लेकिन
आपके जो नी में पेन था, इस वजह से आप जा नहीं पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम? मिस्टर दिनेश Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books and it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो बेपिन पूछते हैं कि अरे भाई, कोई और भी है जो मेरी रांची ट्रिप के बारे में जानता हो? तो पारिमल घोष ने जवाब दिया कि जी हाँ, दिनेश मुखर्जी एक विटनेस है। आप उसके साथ बंगलों में रहते थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आपने ये कहा था कि कोई बावर्ची का अरेंजमेंट हो जाए जो कि आपके लिए खाना बना पाए। जी हाँ, वो थे मिस्टर मुखर्जी जो कि अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। और याद कीजिए, आपका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था अबाउट द मून लैंडिंग। और कुछ बताऊँ आपके बारे में? जी हाँ, आपके साथ हमेशा एक बैग रहता था जिसमें आपकी बुक्स भरी रहती थी जब भी आप कहीं घूमने जाते थे। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? Pepin Babu spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. Pepin Babu की अभी भी नज़रें बुक्स की तरफ है और वो कहते हैं कि इन द ईयर 58 में किस महीने की बात कर रहे हैं? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि भाई अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। नो सर, said Pepin Babu, I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर. You are making a mistake. Good day. बेपिन बाबू ने जवाब दिया कि भाई मैं तो उस वक्त पूजा मनाने के लिए अपने फ्रेंड के पास कानपुर गया था उस ईयर। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हो रही है, अब मैं जाता हूँ। बट द मैन डिडंट गो नॉर ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी वहाँ से गया ही नहीं और चुप भी नहीं हुआ, वो बोलता रहा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit a mental hospital in Ranchi. अब परिमल घोष उनसे फिर कहता है कि बड़ी स्ट्रेंज बात है, एक शाम को हमने चाय पी थी वरांडा में आपके बंगलो में, तब आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था कि आपके कोई बेबी नहीं है और जो आपकी वाइफ हैं वो भी एक्सपायर हो चुकी थी बिफोर 10 years। और आपने ये भी बताया था कि आपका जो ब्रदर है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है बिकॉज ही वॉज मैड, इसीलिए आप रांची का जो मेंटल हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहते थे। जस्ट रिकॉल द मेमोरी, प्लीज़ याद कीजिए उन बातों को। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू अपने बुक्स का पेमेंट कर चुके और शॉप से जा चुके, तब भी वो आदमी उन्हें बड़े ही सरप्राइज से देख रहा था। Now towards the second part. Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you?" सीताराम जी हाँ वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे प्लीज़ गंगा के किनारे पे ले जाओ। ही वॉन्ट टू गेट रिलैक्स समहाउ। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। जी हाँ, उन्हें बड़ा ही अफसोस होता है कि उन्होंने एक अनजान व्यक्ति की बातें क्यों सुनी, उस पर इतना ध्यान क्यों दिया जिससे उन्हें इतनी परेशानी हो रही है। ये नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो क्यों सोच रहे, क्योंकि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। फिर उन्हें ये भी आश्चर्य हो रहा है कि भाई 6-7 साल पहले की जो घटना है वो कैसे भूल गए। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी तो याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, और वो खुद ही कंफ्यूज हो गए। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. No, only today he spoke for half an hour at an important meeting yet. वो एक बहुत ही बड़ी फर्म में काम करते थे और बड़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और अभी तक कभी भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उन्हें ये लग रहा था कि भाई हाफ एन आवर पहले ही तो मैंने बहुत ही आज ही उन्होंने हाफ एन आवर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग
ली थी और एंड yet द मैन न्यू अ डिटेल अबाउट हिम बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि वो आदमी उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानता था. ही वन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि उनकी जो प्राइवेट डिटेल्स थी जो कोई और नहीं जानते थे वो भी वो जानता था. व्हाट वर दे? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेंटी. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची. जी हाँ, सब कुछ उसने बोला वो बिल्कुल सच था, सिर्फ एक ही गलत था, वो था उनकी रांची ट्रिप. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. बिल्कुल झूठ था वो, क्योंकि इन द ईयर 58 वो अपने फ्रेंड जिनका नाम हरिदास बागची था वहाँ गए थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू. नो देर वॉज नो राइटिंग टू हरिदास. अब वो क्या कर सकते थे, हरिदास से को लेटर लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं था. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have any address. जी हाँ, गलत क्यों था? बिकॉज हरिदास अब वहाँ नहीं थे. वो कुछ हफ्तों पहले अपनी वाइफ के साथ जापान गए थे और अब उनके पास में हरिदास का कोई भी एड्रेस नहीं था. But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. लेकिन फिर प्रूफ की ज़रूरत क्या है जब वो इतनी कन्फर्म है कि वो रांची नहीं गए? फिर वो बार बार उस चीज़ को क्यों सोच रहे थे? द रिवर ब्रीज वॉज bracing and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. रिवर से जो हल्की हवा आ रही थी वो बड़ी ही उनको ताजगी दे रही थी, फिर भी वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे. नाउ बिपिन बाबू थॉट टू सी हिज राइट नी. उन्होंने सोचा कि चलो भाई राइट नी को तो चेक करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस पर कट है. तो वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैज़ ऑकर्ड. जी हाँ, बिल्कुल वहाँ पे वो निशान था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये इंजरी कब हुई थी. Had he never fall as a boy and cut his knee? He had tried to recall such an incident but could not. वो याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो नहीं बचपन में वो गिर गया, उनकी नी कट गई, पर उन्हें कुछ याद नहीं होता. Then बिपिन बाबू suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Bananandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Bipin Babu asked for a confirmation, he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो अब उन्होंने दिनेश मुखर्जी से मिलने की सोची, बिकॉज उस आदमी ने दिनेश का नाम लिया था जो कि वहाँ नज़दीक में ही रहता था. लेकिन वहाँ जाना क्या सही था? क्योंकि अगर वो कंफर्मेशन के लिए दिनेश के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल समझेगा कि ये तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, क्योंकि वो तो रांची गए ही नहीं, और क्या पता वो उन पे हंसे. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सासिज्म कुड बी. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. और दिनेश ने अगर उन पे कोई व्यंग किया तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा. तो वो अपनी कोल्ड ड्रिंक लेते हुए, सिप करते हुए अपने एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं बड़े रिलैक्स होके, और फिर दिमाग में आता है कि पता नहीं लोग दूसरों के कामों में क्यों इंटरफेयर करते हैं बिना मतलब का. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. क्या रात का खाना खाकर वो एक अपने उपन्यास में खो गए, है ना, और वो सब कुछ भूल गए जो आज उनके साथ में हुआ था. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? दूसरे दिन ऑफिस में पहली बार ऐसा हुआ कि वो इतने परेशान थे. वो जो पहले के दिन की जो बात थी वो उनके दिमाग में बार बार चल रही थी. उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो आदमी मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो सिर्फ एक चीज़ में मिस्टेक क्यों कर रहा है, वो कि मेरी रांची ट्रिप के बारे में. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face would not show. तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो दिनेश को ही फ़ोन कर लेते हैं और इस मैटर को फ़ोन पे ही समझ जाते हैं, क्योंकि कम से कम फेस टू फेस तो नहीं जाना पड़ेगा. अगर बुरा लगा तो
235616 Bepin Babu dialed the number. Hello, is that Dinesh? This is Bepin here. तो बेपिन बाबू ने नंबर डायल किया कि भाई मैं बेपिन बोल रहा हूँ, क्या आप दिनेश हो? वेल what's the news? I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58. तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है? बेपिन बाबू ने कहा कि प्लीज़ मैं एक चीज़ को याद करना चाहता हूँ, कोई ऐसी घटना जो कि 58 इन द ईयर 1958 में हुई हो. 58 what incident? Were you in Kolkata right through that year? That's the first thing I have got to know. तो उन्होंने कहा कि क्या आप कोलकाता में थे उस ईयर में? Wait just a minute, 58. Just let me check in my diary. For a minute there was a silence. Bepin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब वो दिनेश यूँ शो करते हैं कि मानो वो अपनी डायरी चेक करके बता रहे हैं क्योंकि उनको फिक्स याद नहीं आ रहा है ना. तब तक बेपिन बाबू की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है और बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है. हेलो यस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. वेयर? वंस इन February nearby to Krishnanagar to a nephew's wedding. तो वो कहते हैं दिनेश मुखर्जी की हाँ जी हम 2 बार गया था मैं. एक बार तो फैब में कृष्णानगर अपने नेफ्यूज़ की वेडिंग में, एंड देन यू नो अबाउट दिस वन the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But watch all this sleuthing about. और दोबारा रांची जबकि आप मेरे साथ में थे, लेकिन आप ये सब इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स. बेपिन बाबू ने कहा नहीं बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था. वेल थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन. बेपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड्स. बेपिन बाबू ने अपना रिसीवर फ़ोन का नीचे रखा और अपना हाथ सर पे रख के पकड़ के बैठ गए. ही फेल्ट हेड स्विमिंग. उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्हें चक्कर आ रहा है. चील्स सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. उनका बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी. एंड देयर वाज सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिड नॉट ईट देम. ही हैज लॉस्ट हिज हैबिटेट. उनके सैंडविच रखी हुई थी टिफिन बॉक्स में, उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया. उनकी भूख बिल्कुल मर चुकी थी. What happened later on, I will tell you in the next video. So keep on watching. Stay tuned. Goodbye.